Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. Now we will start lesson number 5, factors and multiplies. So I hope all of you nicely understood lesson number 4. So now we will start our topic. So first topic in this lesson is multiplies. What is our topic is multiplies. The multiplication fact you can get from the maths lab activity 1. Okay, so now look at here one math activities. So look at here, how many row? 3 row. In the 3 row, how many dots? In the 1 row have a how many dots? 5 dots. So 3 into 5 equal to 15. Then look at here. Here is the 5 row. 1, 2, 3, 4, 5. And in the each row have a 3 dots. So 5 into 3 equal to 15. Then here is the one only column. How many column? One column. And how many dots in the one column? In the one column have a 15 dots. Then here is the one row, and the one row have a 15 dots. Okay, so now look at here, 3 into 5 equal to 15, 5 into 3 equal to 15, 1 into 15 equal to 15, and 15 into 1 equal to 15. So every time we are getting the answer is same. So look at here, 15 into 15 equal to 3 into 5, 15 equal to 3 into 5, 15 equal to 5 into 3, 15 equal to 5 into 1, and 15 equal to 1 into 15. So 1, 3, 5 and 15 can be multiplied by another number to given the 15. When we are multiply 1, 3, 5 and 15 can be multiplied by the other number. Which number? Other number. So we will get 15. We say that 15 is the multiple of, we will say that 15 is the multiple of 1, 3, 5 and 15. Why is called the 15 is multiple of 1, 3, 5 and 15? Because look at here, when we are multiply 3 into 5, we will get 15. 3 into 5 multiply, we will get 15. 5 into 3, 5 into 3 multiply by, we will get 15. 15 into 1, 15 into 1 we will get 15, and 15 into 1 we will get 15. So this is the multiple of the 15. Then after here look at there, study the table below. The row show that the multiple of number 1 to 8. Okay, this is the row. This is start from the 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry, up to 8. And here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So here is multiply the number. First we will multiply row with column. So 2 into 1 we will get 2, 2 into 2 we will get 4, 2 into 3 we will get 6, 2 into 4 we will get 8, 2 into 5 we will get 10, 2 into 6 we will get 12, 2 into 7 we will get 14, 2 into 8 we will get 16, 2 into 9 we will get 18, 2 into 10 we will get 20, 2 into 11 we will get 22, 2 into 12 we will get 24. So this is the multiple of the 2, that all number is multiple of 2. So like that here up to 8. Then now look at here 3 number. 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, 3 into 5 15, 3 into 6 18, 3 into 7 21, 3 into 8 24, 3 into 9 27, 3 into 10 30, 3 into 11 33, 3 into 12 36. This is the multiple of 3. So like that up to multiple of 8. Okay, so this is the multiple of from 2 to 8. So now look at here, answer the following question from the table below.
Answer the following question from the table. Now look at here. 8 is the multiple of 1 and 2. 8 is the multiple of 1 and 2. So, and also multiple of. Now look at here. 8 is where is present in the 1 table, 8 is the present. Then in the 2 tables 8 is the present. In the 3 table 8 is looking, no. In the 4 table, yes, in the 4 table. 6 table, look, 5 tables looking, 6 table, 7 table, no. Direct in the 8 table is present, 8. In the 9 table, no. In the 10 tables, in the 11, in the 12, no. So where is present 8? 8 कहाँ पे है? एक तो 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, 4 के है और 8 के टेबल में. यहाँ पे 1 और 2 ऑलरेडी लिखा है, मतलब ये वाला 8 लिखा है, ये वाला 8 लिखा है. अभी कौन से 2 टेबल से उसमें 8 है? वो एक तो 4 के टेबल में 8 है और एक तो 8 के टेबल में है. सो 8 is the multiple of 1 and 2 and 8 is the also multiple of 8 and 4. मतलब 8 और किसका मल्टीपल है? 8 और 4 का भी मल्टीपल है. ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 2 8 इंटू 1. मतलब 8 किस का मल्टीपल है? 2 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलता है. 2 4 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 मिलता है जैसे. ओके, सो दिस इज द मल्टीपल ऑफ 8. So which is the multiple of 8? 8 and 4. Then example number 2. 24 is the multiple of. 24 is the multiple of 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. 24 ये कौन से टेबल में है? ठीक है, यहाँ पे 2 के टेबल में नहीं दिख रहा है, लेकिन 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 24 आता है. सो 1 इंटू 24 इक्वल टू 24, 2 इंटू 12 इक्वल टू 24, 3 इंटू 8 इक्वल टू 24, 4 इंटू 6 इक्वल टू 24, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24, 8 इंटू 3 इक्वल टू 24, 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 एंड 4 इंटू 1 इक्वल टू 24. सो दैट ऑल टेबल्स प्रेजेंट 24. ये जो सभी टेबल है इसमें क्या है? 24 प्रेजेंट रहते हैं. ओके, फाइंड द नंबर दैट इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 7 एंड 8. 7 और 8 के मल्टीपल, मतलब 7 और 8 के टेबल में कौन सा मल्टीपल है जो सेम है? कौन सा सेम नंबर मल्टीपल है? Look at here, 7 tables and this is the 8 table. So which is the multiple is common in the 7 and 8 table? 56. In the 8 table 56 and 7 table is the 56. दोनों के टेबल में मल्टीपल क्या है? 57. अगर हम 7 का टेबल लिखेंगे 7 40 28 28 अप टू 7070 और 8 का 8 16 24 अप टू 8080. सो उसमें दोनों के टेबल में क्या कॉमन आता है? 56. सो 7 और 8 का क्या है? मल्टीपल क्या है? 56 है. देन फोर्थ नंबर, फाइंड द नंबर इन द find the two numbers in the table which are multiple of 2, 3 and 4. हमें 2, 3 और 4 के टेबल में ऐसे नंबर लेना है जो तीनों के टेबल में आता है. सो यहाँ पे 24 नहीं है, 2 के टेबल में 24 आता है. ओके, यहाँ पे लिखा था मैंने. देन 4 के टेबल में सबसे पहले तो 12. देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है. तो 12 ये क्या है? तीनों के टेबल में आता है. उसके बाद 24 आता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है. ठीक है, 16 आता है. उसके बाद 80 20 22 24. तो ये हमारा 2 के टेबल में 24 हो गया. फिर उसके बाद 3 के टेबल में 24 आता है और 4 के टेबल में 24 आता है. टू फाइंड द टू नंबर्स tables in find the two numbers in the table which are the multiple of 2, 3 and 4. So which is the number 12 and 24, which is the multiple of the 2, 3 and 4. So this is multiplus.
Then next is the property of multipliers. So now look at here which is the property of multipliers. 2 into 1 equal to 2, 3 into 1 equal to 3, 8 into 1 28 into 1 equal to 28. So now look at here. 2 is the multiple of 2 and 1. 2 के मल्टीपल कौन से है? 2 एंड 1 है. 3 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 1. 3 के मल्टीपल कौन से है? 3 एंड 1. 21 इज द मल्टीपल ऑफ 28 एंड 1. 28 के मल्टीपल क्या है? 28 एंड 1 है. सो यू कैन सी दैट एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ नंबर. जो इट नंबर होते वो इटसेल्फ नंबर के मल्टीपल होते. एंड एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1. एवरी नंबर में 1 का मल्टीपल होता है. ठीक है, जो भी नंबर है वो सभी नंबर 1 के साथ मल्टीपल होते हैं. और जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो हमें आंसर क्या मिलता है? इटसेल्फ नंबर. मीन्स 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज इट्स मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ नंबर. ठीक है, सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 and 2. Can you multiple of number be less than a number? You know that 15 is the multiple of 1, 3, 5 and 15. It is the greater than 1, 3, 5 and it is equal to. क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा मल्टीपल है वो लेस दैन नंबर होता है. यस, क्यों? जो हमारा अभी 15 है, 15 की जो मल्टीपल है वो 15 के ऊपर हो सकते क्या? नहीं, वो मल्टीपल क्या? 15 से छोटे ही नंबर रहेंगे. 15 मतलब यहाँ देखो, जैसे कौन सा नंबर है? 8 है. ठीक है, 8 हमारा 8 फैक्टर कहाँ तक हो सकता है? 8 तक है. सपोज वी आर सेइंग टेक आउट द फैक्टर ऑफ 8. ठीक है, अगर हम 8 के मल्टीपल निकालना है तो हम 8 तक ही निकाल सकते हैं. 9 के टेबल में 8 आता है क्या? नहीं आता है. 10 के टेबल में आता है क्या? 11 के आता है क्या? 12 में आता है क्या? नहीं. तो हमारा जो मल्टीपल होगा वो कहाँ तक ही होगा? 8 तक ही होगा. सो लुक एट हियर. यू नो दैट 15 इज़ द मल्टीपल ऑफ 15. ये किसका मल्टीपल है? 1 का है, 3 का है, 5 का है. 1 का है, 3 का है, 5 का है एंड 15 का है. 15 के ऊपर 15 का मल्टीपल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. इट इज़ अ ग्रेटर दैन 1, 3 एंड 15. इट इज़ इक्वल टू 15. 15 ये मल्टीपल हो सकते हैं 1, 3, 15. इट इज़ इक्वल टू 15. लेकिन 15 से ऊपर हमारा फैक्टर मल्टीपल नहीं हो सकता है. देन लुक एट हियर प्रॉपर्टी नंबर 3. A multiple of number is always greater than or equal to number is itself. ये क्या हो सकता है? 15 मल्टीपल नंबर इज़ ग्रेटर दैन अ इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. वो क्या होता है? मल्टीपल ग्रेटर हो सकता है. मतलब 3 into 5 किया है तो क्या आता है? 15 होगा. मतलब मल्टीपल ये हमारा क्या हो गया? ग्रेटर हो गया. लेकिन इससे छोटा हो सकता है क्या? नहीं, इटसेल्फ नंबर हो सकता है. मतलब 1 into 15 कर सकते हैं. ये तो इटसेल्फ नंबर हो सकता है. नहीं तो उससे क्या होता है? मल्टीपल इज़ द नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द नंबर. जो हमारा मल्टीपल है ये नंबर से ग्रेटर हो सकता है और इटसेल्फ नंबर हो सकता है. ठीक है, लेकिन लेस नहीं हो सकता है. मतलब 3 into 5 14 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. 3 into 5 15 ही होगा. ठीक है, सो वो हमसे क्या होता है? मल्टीपल ग्रेटर ही नंबर हो सकता है. तो 3 into 5 किया है तो उसका आंसर 2 आ सकता है क्या? 2, 3 और 5 से छोटा है तो इसका आंसर 2 आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये इससे क्या रहता है? ग्रेटर ही रहता है, बड़ा रहता है. You can go on multiple 5 by higher and higher number to get more and more multiples. This will never end. ठीक है, you can go on multiple 5 by higher number. हम हायर नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेवर हायर ही नंबर मिलेगा. उससे छोटा नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. इट नेवर द एंड. The property number 4, look at here. A number has a uncountable number of multiple. नंबर क्या है? अनकाउंटेबल नंबर है इन द मल्टीपल्स.
देयर प्रॉपर्टी नंबर 5, देयर इज़ अ नो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर। यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं कि वो लार्जेस्ट मल्टीपल नंबर है। सो नाउ अगेन वन टाइम लुक एट योर प्रॉपर्टी. Property number 1 is the every number is multiple of itself number. Every number is multiple of itself number. Every number multiple is every number is multiple of 1. Every number is multiple of 1. A multiple of number is always greater than or equal to the number itself. A multiple number is always greater than. मतलब जो भी नंबर हम दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उससे क्या होता है, वो बड़ा ही होता है, नहीं तो इक्वल होता है. देन प्रॉपर्टी नंबर 4, अ नंबर हैज़ अ अनकाउंटेबल नंबर इन द मल्टीपल. मल्टीपल में हम अनकाउंटेबल नंबर भी हो सकते हैं. देयर इज़ अ नो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर. वहाँ पे क्या है, कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं हो सकता है. सो दिस इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइज. Then look at here odd and even number. So all of you know what is the odd number and what is the even number. Now look at here. A number which is multiple of 2 is called the even number. For example 2, 4, 6, 8. And then a number which is not a multiple of 2 called the odd number. For example 1, 3, 5, 7. ऑड नंबर और इवन नंबर किसको बोलते हैं? इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो भी नंबर क्या है, 2 के मल्टीपल है, नहीं तो जो भी नंबर 2 के साथ डिवाइड होता है. किसके साथ डिवाइड होता है? 2 के साथ डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर. और जो नंबर 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है, क्या नहीं होता है, 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम ऑड नंबर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर 19 लिया, ठीक है. 19 2 के साथ डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा. 9 की नियरेस्ट वैल्यू 18 होगी. 9 क्या होगी? 18 होगी. तो हम यहाँ पे 18 लिखेंगे. 19 माइनस 18 करेंगे तो हमारा 1 बच रहा है. हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर. अगर 0 होता है तो वही क्या होता है? ऑड नंबर होता है, 2 का डिविजिबल होता है. लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा है? 1 बच रहा है. मतलब 19 हमारा क्या होगा? 19 हम ऑड नंबर होगा, ठीक है. अगर हम 18 लेते, 18 क्या होता है? 2 के साथ डिवाइड होता है. 9 2 सा 18 होता है. मतलब 18 हमारा क्या होगा? इवन नंबर होगा. सो जो भी नंबर क्या है, 2 का डिविजिबल नंबर है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं. और जो नंबर 2 के साथ डिवाइड नहीं होते उसको ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑड एंड इवन. नाउ लुक एट हियर एक्सरसाइज 5.1. व्हाट आर द नेक्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग नंबर. हमें नेक्स्ट 5 मल्टीपल नंबर निकालना है, ठीक है. 5 के नेक्स्ट 5 मल्टीपल नंबर कौन से है? 4 के नेक्स्ट 5 मल्टीपल नंबर क्या है? So now look at in the book, okay, you exercise 5.1 example number 1. 4 नंबर. 4 के नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाइज कौन से है? 4 इंटू 1 इक्वल टू 4. ये हमारा फर्स्ट मल्टीप्लाई है. हमें यहाँ पे वर्ड क्या है? नेक्स्ट 5 चाहिए. मतलब 4 1 के बाद के नेक्स्ट 4 चाहिए. सो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8. 4 इंटू 3 इक्वल टू 12. 4 into 4 equal to 16. 4 into 5 equal to 20. 4 into 6 equal to 24. So what is the next 5 multiples of the 4? So 4 next 5 multiple is the 8, 12, 16, 20, 24. This is the next multiple of the 8, 12, 16, 20, 24 of the 4. Then next is the 7. 7 के नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाइज कौन से होंगे? नाउ लुक एट हियर. 7 इंटू 1 इक्वल टू 7. ये क्या होगा? हमारा फर्स्ट मल्टीपल होगा. हमें चाहिए नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स चाहिए. तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14. 7 इंटू 3 इक्वल टू 21. 7 इंटू 4 इक्वल टू 28. 7 इंटू 5 इक्वल टू 35. 7 इंटू 6 इक्वल टू 42. सो 7 के नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाइज क्या हो गए? 14, 21, 28, 35 एंड 42. सो लाइक दैट ऑल एग्जाम्पल, ओके. सो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2. सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 7 है 8. 8 के नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाइज क्या हो गए? लुक एट हियर. ये क्या है? हमारा 8 का टेबल है. 8 के नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाइज क्या होगा?
8 तो फर्स्ट वाला मल्टीप्लाइज है, हमें नेक्स्ट चाहिए, तो क्या होगा 16, 24, 32 एंड 40. दिस इज द 40 एंड 48. दिस इज द नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाइज. ठीक है, कौन सा होगा, एक 16, 24, 32, then 40 and 48. This is the next 5 multiples of the 8. So this is question number A. This is we had already learned in our last classes. Okay, ये हमने already पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने 1, 2 और 7 नंबर का एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया है. Now look at here B number. Say whether the true or false. हमें true और false लिखना है. ठीक है, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ नंबर. एवरी नंबर वो इट सेल्फ नंबर मल्टीप्लाइज होते हैं. लुक एट योर प्रॉपर्टी नंबर 1. एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ नंबर. यस, सो दिस इज द ट्रू. एवरी नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2. यहाँ मल्टीपल ऑफ 1. व्हाट इज द वर्ड इज कमिंग, नॉट, but every number is multiple of 1. Now look at here property number 2. Property number 2 is the every number is the multiple of 1. but here what writing, not लिखा है, मतलब यहाँ बोल रहे कि 1 ये किसी का भी मल्टीपल नंबर नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है. 20 इज द मल्टीपल ऑफ 1. यस, एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ द 1 मीन्स 20 भी 1 का मल्टीपल हो सकता है. सो दिस इज द ट्रू. अ मल्टीपल ऑफ नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू नंबर. यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीपल नंबर ये इक्वल नहीं होता है. लेकिन लुक एट हियर प्रॉपर्टी नंबर 3. अ मल्टीपल ऑफ नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या रहता है, ग्रेटर रहता है, एंड इक्वल टू द नंबर इट सेल्फ नंबर इक्वल रहता है. बट यहाँ पे कैन नॉट बी इक्वल लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है. अ multiple of number can be greater than the number. Now again look at here property number 3. A multiple of number always greater than or equal to the number. So means this statement also true. So first is the true, second is the false, third is the true, then fourth is the false, and fifth is the true. So this is question number B. Now look at here question number C. Filling the blanks. 3 into 4 equal to 12. So 12 is the multiple of 12 किसके मल्टीपल है, 3 and 4 के है. 12 किसके मल्टीप्लाई है, 3 and 4 के. 7 into 3 equal to 21. So 21 is the multiple of 7 and 3. तो हमारा 21 है वो किसके मल्टीप्लाइज है, 7 और 3 के है. नाउ 4 into फिलिंग द ब्लैंक्स इक्वल टू 20. ठीक है, सो 20 को हम 4 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 20 मिलता है. तो जब हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आंसर आता है. ठीक है, लेकिन हमें चेक करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 into 20. नाउ 4 into 20, 4 के टेबल में 20 कौन से प्लेस पे आता है, 5, 10. तो यहाँ पे 4 into 5 इक्वल टू 20 एंड 20 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5. 20 ये किसके मल्टीपल है, 4 and 5 के. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. 7 into 9 इक्वल टू 63. सो 63 इज़ द मल्टीपल ऑफ 7 and 9. 63 ये किसके मल्टीप्लाइज है, 63 is the multiplies of the 7 and 9. Now filling the blanks. and 8 equal to 72. 72 के चाहिए हमें, तो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 72 आएगा, 9 into 8 72. 9 into 8 कितना हो गया, 72 होता है. 8 के टेबल में 9th वाले प्लेस पे क्या आता है, 72 आता है. तो 72 इज़ द मल्टीपल ऑफ 72 किसके मल्टीप्लाइज है, 9 and 8 के. 72 जो है वो किसके मल्टीप्लाइज है, 9 and 8 के. नाउ 8 इन फिलिंग द ब्लैंक्स इक्वल टू 64. 8 के टेबल में 64 कौन से प्लेस पे आता है, 8 into 8 64. So 64 is the multiple of 8. 64 ये किसके मल्टीप्लाइज है,
8 के मल्टीप्लाइज है. So this is the question number C. Then look at here question number D. Write the next 3 multiplies. हमें next 3 multiplies लिखना है. ठीक है. So look at here 6, 12, 18. 6 1 चा 6, 6 2 चा 12, 6 3 चा 18, 6 4 चा 24, 6 5 चा 36, 6 6 चा 36. Then 5 1 चा 5, 5 2 चा 10, 5 3 चा 15, 5 4 चा 15. Then 5 3 चा 15, 5 4 चा 25, 5 चा 25, 5 6 चा 30 and 5 7 चा 35. So this is the 5 table. Then 9 table. 9 1 चा 9, 9 2 चा 18, 9 3 चा 26, 9 4 चा 36 and 9 5 चा 45. So this is the multiplies of next number. ठीक है. Now look at here question number 2. Filling the missing number. मिसिंग नंबर फिल करना है. ठीक है. तो नाउ लुक एट हियर 7 है, 14 है. 14 के बाद क्या आएगा? 21 आता है 7 के टेबल में. उसके बाद 28, 28 के बाद क्या आता है? 35 आता है. नाउ लुक एट हियर यहाँ पे 16 है सेकंड प्लेस पे. तो कौन से टेबल में 16 सेकंड प्लेस पे आता है? 8 के टेबल में सेकंड प्लेस पे 16 आता है. 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24, 8 4 चा 32, 8 5 चा 40 and 8 6 चा 8 6 चा 48. So this is the table of 8. Now again here have a table of the 8. यहाँ पे 24 है थर्ड वाली प्लेस में. तो कौन सा टेबल है कि थर्ड प्लेस में हमें क्या आएगा? 24 आएगा. नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते. 24 कौन से प्लेस पे है? 3 वाले प्लेस में है. तो हम 24 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा. तो 8 16 24 32 एंड 40. दिस इज द टेबल ऑफ द 8. ओके. देन लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर ई. चेक इफ द फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ द सेकंड नंबर. हमें चेक करना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये फर्स्ट का क्या है? मल्टीपल है क्या नहीं. सो नाउ लुक एट हियर इन द 7 टेबल 63 इज प्रेजेंट. यस, इन द 7 टेबल 63 इज प्रेजेंट. आता है 7 के टेबल में 63 आता है. सो नाउ लुक एट हियर वी विल सी इन द टेबल. दिस इज द टेबल ऑफ 7. 7 के टेबल में 63 आता है. मतलब ये फर्स्ट वाला नंबर है वो क्या है? फर्स्ट वाला जो हमारा नंबर है वो क्या है? मल्टीपल है. चेक द फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर. तो इसमें मल्टीपल है. यस. देन अगर हम 7 इंटू 9 करते हैं तो क्या आता है? 63 आता है. देन 9 के टेबल में 54 आता है क्या? हम चेक करेंगे. दिस इज द 9 टेबल. 54 आता है. यस. अगर हम 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है? 54 आता है. नाउ 10 के टेबल में 53 आता है क्या? नहीं आता है. तो ये मल्टीपल है क्या? नहीं है. नाउ 6 के टेबल में 24 आता है. यस. अगर हम 6 इंटू 4 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 24 मिलता है. मतलब ये भी मल्टीपल है. नाउ 4 के टेबल में 21 आता है. नहीं, तो ये भी क्या नहीं है? मल्टीपल नहीं है. नाउ 5 के टेबल में 15 आता है. अगर 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 15 मिलता है. तो 1 नंबर, 2 नंबर, देन दैट A, B, D and F. दिस इज द मल्टीपल ऑफ नंबर. देन हमें 2 नंबर में क्या करना है? A1 नंबर को सर्कल करना है और 3 नंबर में ऑड नंबर को सर्कल करना है. सो इवन नंबर मतलब क्या होता है? जो नंबर 2 के साथ डिवाइड होते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं. सो 8 डिवाइड होता है 2 के साथ. यस. 14 यस. 7 नो. 9 नो. 10 यस. 11 नो. 1 नो. सो विच इज द इवन नंबर? 8 14 and 10.
नाउ ऑड नंबर 16 ऑड नंबर है क्या? नहीं। अगर 2 को हम 16 के साथ डिवाइड करते तो हमें 8 आता है, ठीक है। देन 8 होता है, यस, 4 2 सा 8, देन 3 2 सा 6, मतलब 2 के साथ डिवाइड होगा। 15 होता है क्या? नहीं होता है। तो 15 क्या है? ऑड नंबर है। 25 भी ऑड है और 54 भी क्या है? इवन नंबर है। अगर 2 के साथ 54 को डिवाइड करते हैं तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, देन 1 14 एंड 2 7 सा 14। अगर 2 को 57 के साथ डिवाइड करते हैं तो 27 के साथ डिवाइड हो, मतलब 27 हमें क्वेश्चन मिलता है। तो 54 भी हमारा क्या है? इवन नंबर है। तो इसमें ऑड नंबर क्या है? 15 एंड 25। So this is our exercise 5.1, which is the exercise 5.1. Then factors we will be see in our next period. I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.